جی بھر کے میں دے دوں علی اکبر کو دعائیں لینا ہے ابھی محمد کی بلائیں اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب ہر چاند سے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی کچھ آنکھ میں حسرت تو کچھ باقی لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ بیٹی کو سلانے کو ہے شبیر کا سینہ
झूला अली असगर का झुलाती है सकीना ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैना कल कौन सुनेगा ये मेरी आहू पुका है होगा गला भी खैमा तो कुजा सर पे न होगी ये रिदा भी ऐ रात न ढलना उजड़ जाएगी ज़ैना भाई से दमे सुबह हो बिछड़ जाएगी ज़ैना। বাইরে যারা আছেন দয়া করে ভিতরে চলে আসেন, যারা বাইরে আছেন দয়া করে ভিতরে চলে আসেন, মধ্যে শুরু হয়ে যাচ্ছে। উষ্ণ দিয়ে ইমামে জামানা বুলন্দ সালাওয়াত সালাওয়াত। আমি এ ব্যথা ঘুচাবো কেমনে, শুনে নবীর আওলাদের করুণ কাহিনী। আমি এ দুঃখ ঘুচাবো কেমনে, শুনে নবীর আওলাদের করুণ কাহিনী। আমি এ ব্যথা ঘুচাবো কেমনে, শুনে নবীর আওলাদের করুণ কাহিনী। আমি এ দুঃখ ঘুচাবো কেমনে, শুনে নবীর আওলাদের করুণ কাহিনী। নবীজির প্রাণেরই প্রিয় ছিলেন যারা, তাদের করল শহীদ মুসলিম নামধারী উম্মতেরা। আমি এ ব্যথা ঘুচাবো কেমনে, শুনে নবীর আওলাদের করুণ কাহিনী। আমার নবীজি বিদায়ের কালে রেখে যান আহলে বাইত আল কোরআন। কোরআনের আলিম রানার সূরা আহজাবে আহলে বাইতের খোঁজে পাওয়া যাবে। আমার নবী বলেন আমি আলী হতে, আমার নবী বলেন আমি হুসাইন হতে, এরা যে আম হতে। এদের কষ্ট দিলে নবীজিরই কষ্ট বাড়ে,
এদের ভালোবাসো ভিজে পাবে আল কোরআনে, কোরআনের সূরাতুশ শূরায়। আমি এ ব্যথা ঘুচাবো কেমনে, শুনে নবীর আওলাদের করুণ কাহিনী। আমি এ দুঃখ ঘুচাবো কেমনে, শুনে নবীর আওলাদের করুণ কাহিনী। নবীজির প্রাণের প্রিয় সেই হুসাইন, অন্যায় প্রতিবাদী। নবীজির দিনের তরে গেলেন তিনি, মক্কা হতে কারবালাতে। এ যাওয়া প্রতিবাদে, এ যাওয়া ন্যায়ের পথে, এ যাওয়া প্রতিবাদে, এ যাওয়া ন্যায়ের পথে। সঙ্গের সাথী অল্প কয়জনা, হুসাইনের সাথী তারা বেহেশতেরই সাথী যারা। হুসাইন সত্যের নিশানা, আমি এ ব্যথা ঘুচাবো কেমনে, শুনে নবীর আওলাদের করুণ কাহিনী। আমি এ দুঃখ ঘুচাবো কেমনে, শুনে নবীর আওলাদের করুণ কাহিনী। ফাতেমার কলিজারি টুকরা হুসাইন, কারবালাতে অবরুদ্ধ। মাবিয়ার কুলাঙ্গার পুত্র ইয়াজিদ, শুরু করে তাহার সাথে যুদ্ধ। এ যুদ্ধ হক বাতিলের, এ যুদ্ধ সত্য মিথ্যার। এ যুদ্ধ হক বাতিলের, এ যুদ্ধ সত্য মিথ্যার। জীবন দিয়ে সত্য করলেন জয়, হুসাইন জয় করে যান নবীজির ইসলাম। শহীদ হলেন ৭২ জনা। আমি এ ব্যথা ঘুচাবো কেমনে, শুনে নবীর আওলাদের করুণ কাহিনী। আমি এ দুঃখ ঘুচাবো কেমনে, শুনে নবীর আওলাদের করুণ কাহিনী। সালাওয়াত। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যে যেখানে বসে আছেন ভালোভাবে বসুন এবং নিজ নিজ হাতে মাস্ক যেটা আছে মুখে লাগিয়ে রাখুন, কারণ আমরা করোনা ভাইরাসকে দূর করতে চাই এবং করোনা ভাইরাস থেকে আমরা বাঁচতে চাই। এই মহামারী থেকে আমরা যদি বেঁচে থাকি ইনশাল্লাহ আগামীতে আবার এই শোক পালন করব। আমরা এই মলার মজলিসটাকে আমরা করব। সবাই মাস্ক পরে থাকুন এবং দূরত্ব বজায় রাখুন, সবাই দূরত্ব বজায় রাখুন। সবাই দুই হাত তুলে আজকে ইয়াজিদকে বুঝিয়ে দিন যে শিয়া সম্প্রদায় এখনো বেঁচে আছে, মাওলা আলীকে মানায়। मुस्तफा सलावत मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत आवाज बुलंद चौदह मासूमीन अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا صلوات محمد. پیغمبر اسلام کی مشہور اور معروف حدیث حسین منی وأنا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو حسین کو دوست رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے. یہ رسول خدا کی مشہور اور معروف حدیث ہے. ہمارے مطالعے کے مطابق اس حدیث کو ابو ہریرہ نے جابر بن عبداللہ انصاری نے نبی کے اور بہت سے صحابیوں نے نقل کیا کہ نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. خدایا اسے دوست رکھنا جو میرے حسین کو دوست رکھے. الحمدللہ رب العالمین صاحب علم کا مجمع ہے. ہمارے نوجوان سب آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. اس اعتبار سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ مجلس کا وقت بھی جو تھا وہ گزر چکا ہے, ٹائم زیادہ ہو گیا. عورتوں کی مجلس الحمدللہ اجتماع بارگاہ میں روزانہ 11 بجے تقریباً ہوتی رہی, لیکن باہر کے کچھ امام بارگاہ میں شب کی مجلس جو شب میں عورتیں شرکت کرتی تھی وہ مجلس تقریباً کہیں ہے کہیں نہیں ہے یا عورتوں کو اجازت نہیں ہے. عورتوں کی ایک دلی خواہش تھی کہ شب عاشور ہے ہماری مجلس ہونی چاہیے. بے شک ہماری ماں ہماری بہنیں یہی عزاداری کی رونق ہیں. یہ ہیں تو عزاداری آباد ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین نور علی نور, وہ بھی عزاداری کر لیں ہم بھی عزاداری کر لیں اس طریقے سے. لہذا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کائنات میں جتنے دانا ہیں
کائنات میں جتنے نانا ہیں سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نواسا ہم سے ہے. ہر باپ یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے، ہر ماں یہ کہتی ہے یہ ہماری اولاد ہے، ہر نانا یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے. اس اعتبار سے کائنات میں جتنے نانا ہیں سب کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہم سے ہے. الحمدللہ رب العالمین فارسی کا ایک محاورہ ہے. وہ محاورہ یہ ہے کہ اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے. اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے. یعنی ایک ہے اصل آپ کا سرمایہ، اصل آپ کا کیپیٹل، اور ایک ہے آپ کا پروفٹ جو منافع ہو رہا ہے. لہذا کہتے ہیں کہ اصل سے زیادہ پروفٹ جو ہے وہ منافع زیادہ پیارا ہوتا ہے. ہر باپ کو اپنی بیٹی پیاری ہے لیکن نواسا زیادہ پیارا ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. ہر باپ کو اپنی بیٹی پیاری ہے لیکن نواسا زیادہ پیارا ہے. ہر باپ کو اپنا بیٹا پیارا ہے لیکن پوتا زیادہ پیارا ہے. اس اعتبار سے لہذا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، حسین رسول اللہ سے ہے، یہ ہونا چاہیے. ساری دنیا میں جتنے نانا ہیں وہ سب جو ہے نواسا انہیں نانا سے ہے، نانا سے نواسا ہے ساری دنیا میں. اس اعتبار سے لہذا رسول خدا نے جو کہا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، الحمدللہ رب العالمین ہونا بھی یہی چاہیے. قرآن کی آیت ہے ما کانا محمد آبا احد من الرجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ایک طرف آیت کہہ رہی ہے، ایک طرف آیت کہہ رہی ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. دوسری طرف آیت کہہ رہی ہے کہ النبی اولا من مومنین، النبی اولا النبی اولا من مومنین انفسہم. قرآن کیسی آیت ہے؟ النبی اولا ہے مومنین کے نفوس پر، اور ازواجہ امہاتہم، نبی اولا ہے مومنین کے نفوس پر، مومنین کے نفس پر جو ہے وہ نبی حق کے تصرف رکھتا ہے. یعنی ہمارے جان پر، ہمارے مال پر نبی کا حق زیادہ ہے. ٹھیک ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم. درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی اولا ہے مومنین کے جان پر، مومنین کے مال پر حق کے تصرف زیادہ رکھتا ہے. وہ ازواجہ امہاتہم، اور ازواج رسول تمہاری مائیں. عجب مسئلہ ہے. ایک طرف قرآن کہتا ہے نبی کی بیویوں کے بارے میں کہ نبی کی بیوی تمہاری ماں ہے. جب نبی کی بیوی ہماری ماں ہے تو نبی کو کیا ہونا چاہیے؟ باپ. توجہ چاہ رہا ہوں، دنیا کا یہی قاعدہ ہے کہ جو بیوی ماں ہوتی ہے اس کا شوہر باپ ہوتا ہے، اس کا شوہر باپ ہوتا ہے. تو جب ازواج رسول ماں ہے تو رسول کو باپ ہونا چاہیے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نبی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. دیکھو، اگر ازواج رسول کو ماں نہ کہا تو اسلام سے خارج، اور رسول کو باپ کہہ دیا تو اسلام سے خارج. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ میں آیا؟ لہذا اگر رسول کو باپ نہ کہا تو اسلام سے، باپ کو کہا تو اسلام سے خارج، اور ان کو ماں نہ کہا تو اسلام سے خارج. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر انسان اولاد چاہتا ہے. تقریباً الحمدللہ رب العالمین نوجوان ہے، لہذا ہمارا ذہن کچھ الحمدللہ رب العالمین امام حسین کی مجلس کا حق ادا ہو جائے.
लिहाजा वजह यह है कि हर इंसान औलाद चाहता है। इस औलाद से कोई नबी, कोई वली, कोई पीर, कोई मुर्शिद, कोई दरवेश, कोई कुतुब, कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। हर ये चाहता है खुदा हमें औलाद दे। नेक अगर औलाद है, साले औलाद है, तो बाप माँ के लिए ज़ईफ़ी का सहारा है। मैं बारहा कह चुका हूँ, वाकई आज जो हमारे नौजवान मुश्किलात के शिकार हैं, जिनके पास रोटी नहीं है, दरबदरी है, परेशानी है, तंगदस्ती है, उनको कहता हूँ एक ही इलाज है, अपने बाप माँ को राज़ी करो, सब ठीक हो जाएगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए, बाप माँ अगर राजी हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सब दरवाज़ा खुदा तुम्हारे लिए खोल देगा। अगर मरहूम हो गए, जब भी इनकी कब्र पर जाओ, दुआ पढ़ो, फातिहा पढ़ो, फला करो, ताकि खुदा तुम्हारे लिए रहमत का दरवाज़ा खोल दे। सब चाहता है औलाद औलाद औलाद। नबी की भी औलाद थी जिसका नाम था ताहिर, जनाब खदीजतुल कुबरा के बतन से। जनाब ताहिर का इंतकाल हो गया। जब जनाब ताहिर का इंतकाल हो गया तो अब नबी बाजार से गुजर रहे थे। पता है दुनिया वालों को नस्ल बेटे से चलती है। ये जो रसूल खुदा बाजार से गुजर रहे थे और नबी की जो औलाद थी वो दुनिया से चली गई, तो आस बिन वाइल एक काफिर है। उसने जब नबी को जाता हुआ देखा तो कहा देखो देखो ये अबतर जा रहा है, यानी कि इसकी कोई औलाद नहीं है, इसकी नस्ल ख़त्म हो गई, इसकी नस्ल और आगे नहीं बढ़ेगी। रसूल खुदा को बहुत धक्का लगा, बहुत अफसोस हुआ, अब वो तो मेरी औलाद चली गई और ये हमें ताना दे रहा है। ये जो रसूल को ताना दे रहा था और अल्लाह के नबी को अफसोस हुआ, कुरान की आयत सूरा नाज़िल हो गया, क्या इन्ना आतैना का कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वन्नहर इन्ना शाने का हुवल अब्तर। ऐ मेरे नबी, आप क्यों गमज़दा हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? अल्लाह ने आपको कौसर अता किया, खैर कसीर अता किया। दुश्मन अबतर आप नहीं, आपका दुश्मन अबतर होगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। आपका दुश्मन अबतर होगा, यानी वो जो है ना ला वलद, बे औलाद, जो आपका दुश्मन होगा, लेकिन आपको खुदा ने खैर कसीर अता किया, आपको खुदा ने कौसर अता किया। फसल्ले लिरब्बिका, अपने रब के लिए आप नमाज पढ़ें, वन्नहर, और अपने रब के लिए आप कुर्बानी दें। आप अबतर नहीं हैं, आपका दुश्मन अबतर है। हो गया। उसके बाद अल्लाह ने रसूल को फातिमा ज़हरा जैसी बेटी अता फरमाई। बेटी फातिमा ज़हरा, ये फातिमा ज़हरा जैसी जो बेटी अल्लाह ने अता फरमाई, तो नबी ने फरमाया इन्नल्लाह जाला ज़ुर्रियतन कुल्लु नबीइन फी सुल्बिही व ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह ने तमाम नबियों के ज़ुर्रियत को, नस्ल को खुद उसके सुल्ब में रखा है, लेकिन मेरी ज़ुर्रियत को अल्लाह ने सुल्ब अली इब्न अबी तालिब में रखा है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। इस तरीके से जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए नस्ल रसूल चली। आज आप बताइए, दुनिया में वो दुश्मन अबतर हो गया, लेकिन दुश्मन दुनिया में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मकाम, हर मकाम पर जहाँ औलाद फातिमा ना हो। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। औलाद हर मकाम पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज औलादे जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सैयद व सादात अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा करे, फिर बार बार कहता हूँ, मादत के साथ कहता हूँ कि सैयद होना क्रेडिट नहीं लेके आता। आप ये मत सोचिए मैं सैयद हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे पास कुछ दिन पहले ख़वातीन आई थी, मौलाना साहब আমি সৈয়দের বংশ, ভালো কথা, আপনি সৈয়দের বংশ, মৌলানা আমার বাপ দাদা অমুক অমুক সব সৈয়দ, আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই, কিন্তু আমি হেজাব করি না,
আচ্ছা আপনি সৈয়দে তারপরে হেজাব করেন না, এটা কিরকম সৈয়দ? আচ্ছা 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 আসবো, আমি ওড়না মাথাতে দিয়ে আসবো। দুরূদ পড়েন মোহাম্মদ আলে মোহাম্মদ। बहरहाल बेशुमार आपको लोग मिलेंगे जो अपने आप को कहते हैं सैयद है। हमारे लोग भी, हमारे जानने वाले भी हम सैयद है। आप किसकी तकलीद करती है? हम किसकी तकलीद करें? हम खुद ही सैयद हैं। यानी इनको किसी मर्जा तकलीद की तकलीद करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसकी तकलीद करें? हम खुद ही सैयद हैं। नहीं बाबा, सैयद होना बाई बर्थ कोई क्रेडिट नहीं लाता जब तक ईमान और अमल ना हो। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। किरदार इस एतबार से मैं कहता हूँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह मिर्जा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शेख है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शेख है, सैयद है, जो है वही रहे लेकिन किरदार के साथ रहे। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अमल के साथ रहे, अमल और किरदार के साथ है। इस एतबार से अमल और किरदार है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान हमारे अहले बैत में से। नाम रखने से कुछ नहीं होता, आप नाम रख लीजिए। हमारे नाम रखने में और अहले बैत का नाम में यही फ़र्क है। हमारे नाम में अहले बैत के नाम में यही फ़र्क है। हमारे एक बाप ने अपने बेटे का नाम फादिल रखा, निकला जाहिल। एक ने अपने बेटे का नाम आकिल रखा, निकला पागल। एक ने अपने बाप का नाम जाहिद रखा, निकला फासिक। एक ने अपने बेटे का नाम साजिद रखा, निकला बेनमाजी। एक ने अपने बाप का नाम रखा मोहम्मदीन, निकल गया बेदीन। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाम रखने से कुछ नहीं होता कि इंसान नाम रख ले, भाई फला है फला है फला है फला है। सलमान नाम रखने से कुछ नहीं होता। दो सलमान है, एक सलमान फारसी है, एक सलमान रुश्दी है। सलमान फारसी रहमतुल्लाह है, सलमान रुश्दी लानतुल्लाह है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। लानतुल्लाह। इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लिहाजा रसूल खुदा की नस्ल जो है वो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चली। सलामुल्लाह अलैहा से चली, बेटी के ज़रिए चली। नबी ने कहा हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। ये हुसैन मिन्नी, इमाम हुसैन की और भी फजीलत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बात की मजलिसें भी जो होंगी आप सुनेंगे। आज शबे इबादत है, इंतहाई इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह मजलिस को ख़त्म करूँगा। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किससे? रसूल खुदा से। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। ये तो समझ में आ गया कि हर बेटा अपने बाप दादा नाना से हुआ करता है, लेकिन वह अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, ये समझ में नहीं आया। तवज्जो चाह रहा हूँ, यह समझ में नहीं आया कि नाना नवासे से कैसे है। अगर ये हम समझना चाहें कि नाना नवासे से कैसे है तो यकीनन जब अल्लाह के रसूल से पूछेंगे कि अल्लाह के रसूल ये बताइए आप नवासे से कैसे हैं, तो अल्लाह के रसूल यही कहेगा, मेरे प्यारे क्या तुम्हें जनाब इब्राहिम का वो वाक़या याद नहीं? जनाब इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़िब्ह कर रहा हूँ। अपने ख्वाब को बयान किया। जनाब इस्माइल आमादा हो गए। अपने ख्वाब की ताबीर को पूरा करने के लिए जनाब इब्राहिम इस्माइल को ले चले, मकाम मिना पर लिटा दिया, हाथ पर रस्सी से बांध दी, ज़िब्ह करने पर आमादा हुए। कायनात के जर्रे जर्रे ने फरियाद की कि पालने वाले नबी दादे का क्या कसूर है, पालने वाले नबी दादे का क्या कसूर है, नबी दादे को बचा ले। अल्लाह ने कहा कोई है जो इस्माइल को बचाए, कोई है जो इस्माइल को बचाए। फिजा में खामोशी, कोई है जो इस्माइल को बचाए। इस आवाज के उठते ही आलम अरवाह में एक आवाज आई, या रब अना, या रब अना, या रब अना। खुदा जानता था ये किसकी आवाज है, लेकिन फिर भी खालिक अर्ज़ो समा ने मुसलमानों को पहचानवाने के लिए पूछता, मन अंता, तू कौन है जो आज इस्माइल को बचाना चाहता है? आवाज आई, अना हुसैन इब्ने अली। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद।
अली आलम अरवाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पालने वाले मैं हुसैन इब्न अली हूँ, तो इस्माइल को बचा ले, एक के बदले 72 कुर्बानी दूंगा। वो दिलहिज की 10 तारीख थी, ये मुहर्रम की 10 तारीख है। कुरान की आयत नाज़िल हुई, ऐ इब्राहिम मैंने तुम्हारी इस कुर्बानी को कबूल किया, लेकिन उस कुर्बानी को ज़िब्ह अज़ीम में बदल दिया, ज़िब्ह अज़ीम में। कहने का मकसद ये है कि आने वाली कुर्बानी अगर ज़िब्ह अज़ीम है तो जनाब इस्माइल को ज़िबा होना चाहिए, ज़िब्ह अज़ीम को बचना चाहिए। होता तो यही है ना, बड़े चीज़ की कुर्बान, बड़े चीज़ को बचाने के लिए छोटी चीज़ की कुर्बानी दी जाती है। इंसान को बचाने के लिए जानवर की कुर्बानी दी जाती है, जानवर को बचाने के लिए इंसान की कुर्बानी नहीं दी जाती। लिहाजा जब आने वाली कुर्बानी ज़िब्ह अज़ीम है, इस्माइल की कुर्बानी छोटी कुर्बानी है, इस्माइल को ज़िब्ह होना चाहिए और आने वाली कुर्बानी को बचना चाहिए। लेकिन खुदा कहता है इब्राहिम मैंने तुम्हारी इस कुर्बानी को कबूल किया, इसको ज़िब्ह अज़ीम में तब्दील कर दिया। वो दिलहज की 10 तारीख थी, ये मुहर्रम की 10 तारीख है। किस तरीके से ज़िब्ह अज़ीम, इस एतबार से ज़िब्ह अज़ीम है कि जो आने वाला नबी है वो खातिमुन नबीन है, जो आने वाला नबी है वो रहमतुल लिल आलमीन है, जो आने वाला नबी है वो सिराज मुनीर है। वो किसके नस्ल से आने वाला है? जनाब इब्राहिम की नस्ल से। जनाब इब्राहिम के फर्जंद का नाम जनाब इस्माइल, जनाब इस्माइल के फर्जंद का नाम जनाब कसी, जनाब कसी का नाम फर्जंद का नाम अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ के फर्जंद का नाम जनाब हाशिम, जनाब हाशिम के फर्जंद का नाम अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के फर्जंद का नाम अहमद मुस्तफ़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। बहरहाल दरमियान में और भी सिलसिला है और भी नाम है, यानी जनाब इब्राहिम की नस्ल से, जनाब इस्माइल की नस्ल से रसूल खुदा को ज़ाहिरी दुनिया में आना था। अगर जनाब इस्माइल ज़िब हो जाते तो इस ज़ाहिरी दुनिया में रसूल खुदा नहीं आ सकते थे। लिहाजा अल्लाह ने इस्माइल को बचाया, इमाम हुसैन के ज़रिए बचाया, बचा के रसूल खुदा को इस दुनिया में आने का मौका दिया। इसलिए नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हुसैन अगर उस कुर्बानी का वादा नहीं करते ना तो रसूल खुदा इस ज़ाहिरी दुनिया में नहीं आ सकते थे। हर नबी नमूना है, हर नबी नमूना है, ईमान के एतबार से, अमल के एतबार से हर नबी नमूना है। लेकिन हर नबी नमूना तो है, लेकिन इमाम हुसैन हर नबी के लिए नमूना है। तवज्जो चाह रहा हूँ, हर नबी नमूना है, हर नबी के नक्शे कदम पर हम चल सकते हैं, लेकिन इमाम हुसैन सबके लिए नमूना। जब हुसैन सबके लिए नमूना, हम ज़ियारत वारसा में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ऐ नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहिम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इस्माइल ज़बीउल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मोहम्मद अल मुस्तफा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
सलाम हो, ऐ नूह के वारिस आप पर हमारा सलाम हो, ऐ इब्राहिम के वारिस आप पर हमारा सलाम हो, ऐ मूसा के वारिस आप पर हमारा सलाम हो, ऐ ईसा के वारिस आप पर हमारा सलाम हो। इस तरीके से सलाम 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 इमाम हुसैन पर। हुसैन की शख्सियत बहुत अजीम है, बहुत अजीम। हुसैन कायनात में मासूम है, मासूम। हुसैन खुद मासूम, हुसैन के नाना मासूम, हुसैन के बाबा मासूम, हुसैन की मादर गिरामी मासूम, हुसैन का भाई मासूम, हुसैन के 9 औलाद मासूम। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। 9 औलाद। हुसैन की 9 औलाद मासूम। जैसे हुसैन मासूम है, जैसे हुसैन की शख्सियत है, वैसा इमाम हसन भी नहीं है। माज़रत के साथ इमाम हसन भाई है, इमाम हसन मासूम है, इमाम हसन के नाना मासूम है, इमाम हसन के बाबा मासूम है, इमाम हसन की माँ मासूम है, मासूम इमाम हसन का भाई मासूम है, लेकिन औलाद मासूम नहीं है। ये फ़कत हुसैन है कि 9 औलाद हुसैन की मासूमा है, मासूम है। और जहां तक सरदारी का ताल्लुक है, हुसैन के दरवाजे पर तमाम सरदारी जमा है। नाना सैयदुल अंबिया है, बाबा सैयदुल औसिया है, माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन है, भाई सैयदतुल शबाब अहलुल जन्ना है। हुसैन खुद सैयदुल शुहदा है, शुहदा के सरदार। बेटा सैयदुल साजिदीन है, और जिब्रील जो खादिम है वो सैयदुल मलाइका है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। सैयदुल मलाइका यानी सरदारी जो है इमाम हुसैन के दरबार में जमा है। এত বড় হুসেন, ক্ষমা করবেন আমাকে। চাচ্ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন এই পর্যন্ত প্রত্যেক দিন আপনারা বাংলা শুনলেন। আমিও চাই ইমাম হোসেন যেন জিম্মি না থাকে। হোসেন সবার জন্যে, হোসেন সবার জন্যে। সবাকে বোঝাবার দরকার হুসেনকে। হুসেনকে কাকে বলা হয়? হোসেন। রাসূলুল্লাহ এমনি বলেন নাই হুসাইন মিন্নি ওয়া আনা মিনাল হুসাইন, হুসাইন আমার হইতে আমি হুসাইন হইতে। এই আল্লাহ যারা হুসেনকে ভালোবাসবে তুমি তাদেরকে ভালোবাসবা, যারা হুসেনের শত্রু তারা হলো তোমার শত্রু। এরকম রাসূলুল্লাহ বলেন নাই, কিন্তু মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ হুসেনকে বুঝতে পারলো না। আশুরের দিন 10 মুহররম অনেকরা আছে তারা বলে কি এই দিনে খুশি করা যাবে, এই দিনে নাউজুবিল্লাহ ভালো পোশাক পরা যাবে, এই দিনে আতর লাগানো যাবে, এই দিন ঘোরা যাবে, এই দিন অমুক করা যাবে। এই 10 মুহররমের অনেক ফজিলত তাদেরকে বলো কারণ কি, কেন এত ফজিলত, কারণ কি? বলে কি জানেন আদমের তওবা কবুল হলো, আদমের তওবা কবুল হলো এই 10 মুহররমে। নূর নবীর তরি নেজাত পাইলো এই 10 মুহররমে। ইব্রাহিমের জন্য আগুন যে গুলজার হলো, ফুল হলো এই 10 মুহররমে। মুসার নবীর জন্য নদীর মধ্যে রাস্তা হলো এই 10 মুহররমে। জানাব ইসমাইল বেঁচে গেলেন এই 10 মুহররমে। তারা এইভাবে বলে খুশির দিন, খুশি করো, খুশি করো। আমরা বলি তা না, ইতিহাস দেখো। জানাবে মুসার যে নদীতে যে রাস্তা হলো আর অন্য মাস। জানাবে নূর নবীর তরির যে পার হলো ওই তো জিলহিজের মাস। অমুকের নবীর যে অমুক হলো ওই রাবিউল মাস। অমুক জানাবে ইউনুস নবী যে মাছের পেট থেকে বাইরে আসলেন ওইটা অমুক মাস, মাসটা ভিন্ন। তারা সব জমা করে দিল মুহররমের মাসে। মুহররমের মাস 10 মুহররম খুশি করা দিন। আমি তাদেরকে বলি আচ্ছা যদি এইটা যদি সঠিক হয়ে থাকে যে নূর নবীর তরি পার হয়েছে, জানাবে ইউসুফ নবী মাছের পেট থেকে বাইরে আসলেন, জানাবে আদমের দোয়া কবুল হয়েছে, জানাবে ঈসা নেজাত পেয়েছেন, জানাবে ইব্রাহিম নেজাত পেয়েছেন, যদি এই দিন হয়ে থাকে
তো সব জিনিস মনে আছে, নবীর সন্তান যে জবা হয়ে গেল সেটা মনে নাই, সেটা মনে নাই না। ওই নবী নূহ নবী নিজের নবীর আমলে নবী ছিল, ইব্রাহিম নবী নিজের নবীর আমলে নবী ছিল, মুসা নবী নিজের নবীর আমলে। আমরা কার কলমা পড়ি? আশহাদু আন্না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। দরুদ পড়েন মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। অন্য অন্য নবী মনে আছে, নিজের নবী মনে নাই, নিজের নবীকে ভুলে গেল। বাবা নিজের নবীকে স্মরণ রাখো। আমার বংশের মধ্যে একদিন মনে করেন, একদিন আমার জন্ম হলো, আমার মেয়ের বিয়ে হলো, আমার ভাইয়ের জন্ম, বাচ্চা জন্ম হলো, অমুক হলো, 50টা খুশি, 50টা। আর সেই দিন আমার বাপ মারা গেল, ফর এক্সাম্পল বাপ মারা গেল। এখন ওই বাচ্চার বার্থডে করব না বাপকে স্মরণ করব? দরুদ পড়েন মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। বাপকে স্মরণ করবো, বাপকে স্মরণ করবো। আল্লাহ না করুক, আল্লাহ করুক। এইভাবে একজন যদি মারা যায়, একজন, চিন্তা করবো এই দিন আমাদের জন্য অনেক পবিত্র দিন। আর যেই রসুলের একজন না 72 জন মারা গেল একদিনে, 4 ঘন্টার মধ্যে এত লোক মারা গেল। ওই লোক রসুলকে আমরা ভুলে যাব? ওই নবীকে আমরা স্মরণ রাখবো না? যে তো আছে, রেওয়ায়েতের আছে। নবী দেখো নবী কি করলো, नबी कांदलो कि नबी कांदलो ना? नबी की कर लो, नबी ने क्या किया? हमारे नबी है ना, जो नबी ने किया वही करो। नबी ने क्या किया? रवायत में है, जब इमाम हुसैन पैदा हुए, जिब्रील अमीन आए, आके इमाम हुसैन के शहादत की खबर सुनाई। अल्लाह के रसूल, ये नवासा आपका करबला में आपकी उम्मत जो है से कत्ल करेगी। नबी रोने लगे, बेतहाशा नबी रोए, मेरे इस नवासे को उम्मत मार डालेगी। मुस्नद इब्ने हम्बल में है क्या कि इब्ने अब्बास उन्होंने नबी को ख्वाब में देखा। क्या ख्वाब में देखा? कि 10 मुहर्रम है, अल्लाह के रसूल आए हैं गरीबान चाक, परेशान हाल, चेहरे पर गर्दो गुबार। कहा कि अल्लाह के रसूल आपकी ये हालत। कहा कि इब्ने अब्बास, करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन मारा गया, लिहाजा नबी रोते रहे हुसैन के गम में। उम्मे सलमा से रवायत है, जिब्रील ने करबला की मिट्टी ला के दी थी नबी को, नबी ने वो मिट्टी उम्मे सलमा के हवाले किया। अरे उम्मे सलमा, जब तक ये मिट्टी मिट्टी रहे समझना हुसैन जिंदा है, लेकिन जब ये मिट्टी खून हो जाए समझ लेना हुसैन करबला में कत्ल हो गया। लिहाजा उम्मे सलमा, आशूर के दिन उम्मे सलमा ख्वाब से बेदार हुई। क्या देखा? अल्लाह का रसूल आया है, ज़ारो कतार अल्लाह के रसूल रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल क्यों रो रहे हैं? उम्मे सलमा, करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन मारा गया। कुछ वक्त दे दें, बातें जहन में आती है बताता चलूँ, बार बार ये मौका नहीं मिलता। फ़कत रसूल खुदा नहीं, जनाब आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए हैं, आने के बाद जनाब हव्वा को तलाश करते करते जनाब आदम करबला की जमीन पर पहुंचे। एक मर्तबा जनाब आदम के पैर में ठोकर लगी और पैर से खून जारी हुआ। जनाब आदम ने कहा, पालने वाले ये कौन सी जमीन है? हर जमीन मेरे लिए आरामदेह थी, लेकिन जमीन पर आके मुझे तकलीफ हो गया। अल्लाह ने कहा, आदम ये वो जमीन है जहां पर आखिरी नबी का नवासा हुसैन शहीद होगा, लिहाजा मैंने चाहा इस जमीन पर तुम्हारा खून भी गिरे। ले आए आदम, पालने वाले कौन हुसैन को शहीद करेगा? का यजीद करेगा। ऐ आदम, सारी दुनिया, सारी कायनात यजीद पर लानत भेजती है, तुम भी लानत भेजो। जनाब आदम ने लानत भेजा। उस मकाम से जनाब आदम आगे बढ़े। जनाब नूह नबी की किश्ती जब दरियाए फुरात में पहुंची, नूह नबी की किश्ती करीब है कि गर्क हो जाएगी, पानी में तजल्जुल है कि किश्ती डूबने वाली है। पालने वाले, आखिर ये कौन सा मकाम है? हर मकाम से हमारी किश्ती निकलती चली गई, लेकिन इस दरिया में आकर हमारी किश्ती फंस गई। कहा, नूह ये फुरात है, ये करबला की जमीन है, यहाँ पर नबी का नवासा मारा जाएगा। पालने वाले कौन कत्ल करेगा? यजीद कत्ल करेगा। सब लानत भेजते हैं,
تم بھی لعنت بھیجو. جناب نوح نے لعنت بھیجا, پھر کشتی بھنور سے نکلی. اور آگے چلیے, نوح کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے تھے. گھوڑے کے پیر میں ٹھوکر لگی, گھوڑا گر گیا, گھوڑا گرا, ابراہیم گرے, سامنے پتھر تھا, پتھر جناب ابراہیم کے سر پہ لگا, خون بہنے لگا. جناب ابراہیم نے کہا پالنے والے یہ کون سی سرزمین ہے جہاں ایسا ہوا؟ کہا کہ ابراہیم خود جانور سے پوچھو, خود گھوڑے سے پوچھو. اے ابراہیم یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی کا نواسہ حسین شہید ہوگا, اس اعتبار سے تمہاری نسل سے ہوگا, اس اعتبار سے جہاں اس زمین میں تمہارا خون بھی شامل ہو. اے ابراہیم پالنے والے کون حسین کو قتل کرے گا؟ کہ یزید ملعون, ساری کائنات یزید پر لعنت بھیجتی ہے. اے ابراہیم تم بھی یزید پر لعنت بھیجو. جناب ابراہیم نے لعنت بھیجا. اس کے بعد گھوڑے نے آمین کہا. جناب ابراہیم نے گھوڑے سے آمین کہنے کی وجہ پوچھی. گھوڑے نے کہا یا نبی اللہ, یا نبی اللہ, اس یزید کی وجہ کر ہمارے پیر میں ٹھوکر لگا, آپ گرے, آپ کے ماتھے پر چوٹ لگا, خون نکلا, لہذا خدا لعنت کرے اس ملعون پر. گھوڑے نے آمین کہا. جناب اسماعیل کا چرواہا نہر فرات پر چرتا تھا, لیکن ایک دن چرواہے نے جناب اسماعیل سے کہا اسماعیل آج 3 دن ہو گیا چرواہے کو نہر فرات سے پانی پلاتا رہا, لیکن چرواہے یہ جانور نہر فرات سے پانی نہیں پیتے. جناب اسماعیل نے کہا پالنے والے آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جانور نہر فرات سے پانی نہیں پیتے؟ اللہ نے کہا اے اسماعیل خود ان جانوروں سے پوچھو. جانور بحکم خدا گویا ہوئے اور انہوں نے کہا یا نبی اللہ یہ نہر فرات ہے, حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی نہیں ملے گا, بچے اس مقام پر مارے جائیں گے, لہذا جہاں سے حسین کے بچوں کو پانی نہ ملے وہاں سے ہم پانی پی کر کیا کریں گے؟ اس اعتبار سے اس نے بھی پانی نہیں پیا. ان تمام جانوروں نے یزید پر لعنت بھیجا, جناب اسماعیل نے یزید پر لعنت بھیجا. اور آگے بڑھیے, جناب عیسیٰ علیہ السلام, جناب موسیٰ علیہ السلام جب کربلا کی زمین پر پہنچے, موسیٰ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا, پیر میں چوٹ لگا, خون بہنے لگا. جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے کون سی زمین ہے؟ کہا موسیٰ کربلا کی زمین ہے, اس زمین پر نبی کا نواسہ مارا جائے گا. سب لعنت بھیجتے ہیں, تم بھی لعنت بھیجو. جناب موسیٰ نے لعنت بھیجا. جناب عیسیٰ آئے کربلا کی زمین پر, سنیے ارباب اعضاء, عیسیٰ آئے کربلا کی زمین پر, ایک شیر آ کر کھڑا ہو گیا, حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے. کہا عیسیٰ آپ کو جانے نہیں دیں گے. عیسیٰ نے کہا کیوں نہیں جانے دے گا؟ کہنے لگا کہ نہیں, ایک شرط میں جانے دوں گا کہ آپ اس نبی کے نواسے کو جو قتل کرے گا اس پر لعنت بھیجیے. کہا کون قتل کرے گا؟ کہا یزید ملعون کربلا میں حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کرے گا, لعنت بھیجیے پھر جانے دیں گے. جناب عیسیٰ نے لعنت بھیجا, حواریوں نے آمین کہا. پھر جناب عیسیٰ کی سواری آگے بڑھی. اسی طریقے سے اللہ کا رسول وہ بھی کربلا یاد کر کے روتا رہا. کس طریقے سے روتا رہا؟ اللہ کا رسول دنیا سے جانے سے کچھ دیر پہلے ایک مرتبہ علی سے کہا علی ہمارے صحابیوں سے کہو کہ یہ چلے جائیں. تمام صحابی چلے گئے, فقط آل رسول رہ گئے. کہ اے علی حسین کہاں ہے؟ حسین کو بلاؤ. حسین کو بلایا. کہ اے علی حسین کو میرے سینے پر لٹا دو. اے علی حسین کو میرے سینے پر لٹا دو. حسین کو سینے پر لٹا دیا, گلے میں پائیں ڈالی رسول خدا نے. ڈالنے کے بعد رسول روتے رہے. حسین جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آخری زندگی تک حسین کے لیے رونا ہے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے, امت شہید کرے گی یہ. اور مولا علی کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے, راستے میں ایک مقام پر مولا ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد مولا اس مقام پر مولا کو نیند آ گئی. خواب سے ایک مرتبہ مولا بیدار ہوئے رونا شروع کیا. مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس زمین پر ابھی جب سو رہا تھا خواب میں دیکھا ایک خون کی دریا ہے,
ایک خون کی دریا ہے، اس دریا میں میرا لال ڈوبا ہوا ہے. میرا فقط لال نہیں، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اس دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں. امام نے فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، اے حسین صبر کرو. پھر کہا صبرن یا ابا عبداللہ، اے حسین صبر کرو 2 مرتبہ. پھر کہا صبرن 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 یا ابا عبداللہ، اے حسین صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا. مصنف نے لکھا، علماء کرام نے لکھا، حسین علی نے جو کہا حسین صبر کرنا، ایک مرتبہ کہا حسین حسین تیرے بچے مارے جائیں گے صبر کرنا. 2 مرتبہ جو کہا حسین صبر کرنا صبر کرنا، حسین 72 لاش اٹھانا ہوگا صبر کرنا. 3 مرتبہ جو کہا حسین صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا. حسین یہی نہیں، زینب کے بازو باندھے جائیں گے، خیمے میں آگ لگائی جائے گی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پھرایا جائے گا. حسین صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا. واللہ عاشور کے دن قیامت ہے قیامت. آج شب عاشورہ ہے ارباب اعضاء، میں زیادہ رحمت نہیں دوں گا. تمہارا آقا ایک شب کا مہمان ہے، ایک شب کا مہمان. مہمانداری حسین کی کرو یا نہ کرو، لیکن کل حسین چلا جائے گا، کل حسین نہیں رہے گا. لہذا جو مہمانداری کرنا ہے نا، جتنا آنسو بہانا ہے، جتنا رونا ہے، جتنا گریا کرنا ہے، کر لو ارباب ادا. آج شب عاشور. حسین نے 1 شب کی مہلت لی، 1 شب کی مہلت. کیوں؟ عبادت الہی کے لیے. 1 شب میں عبادت الہی بھی ہو رہی ہے، اور عبادت الہی کے ساتھ ساتھ اصحاب جو ہیں وہ تلوار کو سیخل بھی دے رہے ہیں. حسین کے وظائف آج بہت مختلف ہے. عبادت بھی ہو رہی ہے، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، تسبیح بھی پڑھی جا رہی ہے. لیکن ایک مرتبہ حسین نکل کر ایک خیمے میں آئے. کیا دیکھا؟ ام لیلہ ہے، علی اکبر سامنے، مسند چراغ جل رہا ہے. ام لیلہ علی اکبر سے کہہ رہی ہے، اے بیٹا علی اکبر، کل سب سے پہلے شہید ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ماں کو شرمندہ ہونا پڑے. حسین روتے ہوئے آگے بڑھے، دوسرے خیمے میں حسین گئے. کیا حسین نے دیکھا کہ زینب محمد کو لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ اے بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ سے پہلے کوئی چلا جائے. سب سے پہلے کربلا میں شہید ہونا. تیری ماں تیری دادی فاطمہ کو کیا جواب دے گی؟ ارباب اعضاء نانی فاطمہ کو کیا جواب دے گی؟ حسین اور آگے بڑھے. کیا دیکھا ارباب اعضاء؟ ایک اور خیمہ ہے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے ارباب اعضاء. ایک اور خیمہ ہے، اس میں حسن کی بیوہ ہے، ایک بچہ یتیم ہے، بچہ بھی 13 سال کا ہے. ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے، اے میرے بچے، کل سب سے پہلے شہید ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ماں کو شرمندہ ہونا پڑے. ایک مرتبہ حسین کے ساتھ ساتھ عباس بھی ہے ارباب اعضاء. دیکھا ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. حسین رک گئے. کیا دیکھا؟ چھوٹی بہن کا خیمہ ہے. چھوٹی بہن کون؟ ام کلثوم کا خیمہ ہے. ایک مرتبہ کہا، بہن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی، بھیا کل سب اپنی اپنی اولاد آپ پر قربان کریں گے، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے جو میں آپ پر قربان کروں. عباس آگے بڑھے، شہزادی عباس کو قربان کرنا، کل تمہاری طرف سے عباس قربان ہوگا. حسین اور آگے بڑھے ارباب اعضاء. حسین نے کیا دیکھا؟ ایک اور خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. حسین اس خیمے میں گئے تو کیا دیکھا؟ جناب ایک فضہ ہے، زاروں قطار رو رہی ہے. فضہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اے میری ماں کی کنی تو کیوں رو رہی ہے؟ حسین اگر میری بھی اولاد ہوتی نا تو میں بھی آپ پر قربان کرتی. بس یہ سننا تھا. کہا، اماں فضہ کل حسین کو قربان کرنا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے ارباب
एक शब का मेहमान है, कल ये अदा खाना वीरान हो जाएगा। हुसैन तमाम से होते हुए अरबाब अदा एक मरतबा हमारा और आपका आका नशेब की तरफ चला। हमारा और आपका आका एक मरतबा मैदान की तरफ चला। अंधेरा था, बहुत अंधेरा था। हुसैन जब उस मैदान की तरफ बढ़ने लगे ना तो पैर के आहट मालूम हुई, जैसे पीछे से कोई आ रहा है। पलट के देखा तो क्या देखा कि कमरे बनी हाशिम अबुल फजल अब्बास है। भैया अब्बास तुम क्यों आए? आका रात का वक्त है, मैदान है, आका मिसली आया हूँ। गुलाम के होते हुए आका तन्हा चला जाए, आका ये नहीं हो सकता। अब्बास आओ आओ। इमाम ने अब्बास को बुलाया और बुला के कहा भैया अब्बास मैं तुम्हें कुछ जगह निशानदेही करवाता हूँ। कहा आका बताइए। कहा कि अब्बास ये वो मकाम है जहाँ मेरा कासिम मारा जाएगा। अब्बास ये वो मकाम है जहाँ मेरा कासिम मारा जाएगा। कासिम के लाल घोड़ों की टापों से पामाल होंगे। अब्बास ये मकाम है जहाँ मोहम्मद मारे जाएंगे। अब्बास ये वो मकाम है जहाँ तेरे बाजू कलम होंगे। अब्बास ये वो मकाम है जहाँ मेरा अकबर मारा जाएगा। हुसैन बता रहे हैं मैं कहूँगा मौला अब्बास आज तो आप साथ हैं। आज आपको फिक्र है कि आका सबकी तारीकी में तन्हा कैसे चला आया। गुलाम के रहते हुए आका सबकी तारीकी में न जाए। मौला आप साथ साथ आ गए, लेकिन कल करबला में जब यही आपका आका यको तन्हा रह जाएगा मौला, उस वक्त कौन होगा हुसैन का साथ देने वाला? अरबाब अदा ये हो रहा था। पता है अरबाब अदा आज शब आशूर है, गरीबान चाक होना चाहिए, आज दिन खुला होना चाहिए। आज के शब सारा रात हमारा अदा खाना खुला रहता है, सारी दुनिया में अदा खाना खुला रहता है। क्यों खुला रहता है पता है आपको? सारा रात अदा खाना खुला है, मजलिसें हो रही है, मातम हो रहा है। क्यों अरबाब अदा पता है रात के किसी हिस्से में भी हुसैन की माँ फातिमा आएगी। रात के किसी हिस्से में भी हुसैन की माँ फातिमा आएगी अपने लाल का पुरसा लेने के लिए। कहीं ऐसा न हो अदा खाना बंद रहे, फातिमा वापस चली जाए। इस एतबार से और सुनिए खत्म कर रहा हूँ। आज रात को कंगी नहीं करते, आज रात को कंगी नहीं करते। क्यों नहीं करते? कंगी नहीं करने की इल्लत क्या है? कंगी नहीं करने की वजह यह है, एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, क्या कहा? भैया पसे पुश्ते खेमा एक निकाब पोश मुअज़्ज़मा रो रही है। भैया पसे पुश्ते खेमा एक निकाब पोश मुअज़्ज़मा रो रही है। भैया हुसैन ने देखा तो क्या देखा? कल ज़ैनब नहीं पहचाना, मेरी माँ फातिमा है। ज़ैनब नहीं पहचाना, मेरी माँ फातिमा है। फिर क्या हुआ अरबाब अदा? थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? एक मरतबा जो नशेब था ना, नशेब, क्या हुसैन को कत्ल किया जाएगा, क्या हुसैन घोड़े से गिरेंगे, क्या हुसैन ज़िबह होंगे। अरबाब अदा फातिमा उस मकाम पर पहुंच गई और अपने सर के बाल से फातिमा झाड़ू देने लगी। फातिमा ज़हरा ने अपने सर के बाल से मख्तल की सरजमीन को साफ किया। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा हुसैन इसी मकाम पर गिरेगा, मेरा हुसैन शहीद होगा। ऐ अल्लाह, मेरे हुसैन की शहादत को कबूल फरमा। मातम हुसैन।
कोई तो मैं मुसलमान, कोई तो मैं मुसलमान, जो पिलाए मुझको पानी, ये पुकारा माता मैं असगर बेजुबानी बेजुबानी दर खैर में से तड़प कर चली आएगी वो मुझे दर खैर में से तड़प कर चली आएगी वो मुझे जो सुनेगी मेरी मादर, जो सुनेगी मेरी मादर, मेरी माते की कहानी, ये पुकारे रंग में असगर बेजुबानी बेजुबानी, कोई तो मैं है मुसलमान, कोई तो मैं है मुसलमान, जो पिलाए मुझको पानी, ये पुकारे रंग में असगर बेजुबानी बेजुबानी, चाचा का बेटा जो बना धर्म में दूल्हा, वो मेरे चाचा का बेटा जो बना धर्म में दूल्हा, हुसैन 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 हैदर मौला हैदर मौला चाचा का बेटा जो बना धरन में दूल्हा, हुआ पाए माल लाशा, हुआ पाए माल लाशा, देखी उसकी नौजवानी, ये पुकारे रन में असगर बेजुबानी बेजुबानी, तो मैं है मुसलमान, कोई तो मैं है मुसलमान, जो पिलाए मुझको पानी, ये पुकारे रन में असगर बेजुबानी बेजुबानी, दर खैर में है मुसलमान, कोई तो मैं है मुसलमान, आखिरी पुरता लगाइए, ये पुकारे रन में असगर बेजुबानी बेजुबानी, मैं हसन का वो भतीजा, मैं हुसैन का वो बेटा, मैं हसन का हूँ भतीजा, मेरा जान रसूल पर है, मेरा जान रसूल पर है, मैं अतीक
कामिल इसी बात में इब्ने कामिल मुझे दूध मिल सका है मुझे दूध मिल सका है न मिला है मुझको पानी ये पुकार दिल पे तो टपार पड़ेंगे आंसू न रहेगा दिल में काबू तो टपार पड़ेंगे आंसू ये ज़माना जब सुनेगा ये ज़माना जब सुनेगा अरे मेरे मौत की कहानी ये पुकार ऐसी घूमे सीधा जाके जगह लेके घूमे आप लोग एक लाइन मातम करके अंदर पढ़नी है बेकसों के साए नमाज पढ़नी है बेकसों के साए के मकतल में से अंधेरा है करबला के मकतल में सुबह से अंधेरा है पंजाब के सूरज को बादलों ने घेरा है पंजाब के सूरज को बादलों ने घेरा है भी नहीं देखो असर भी नहीं देखो असर भी नहीं देखो असर भी नहीं कतल के साथ जो थे वो बहादुर भी नहीं कतल के साथ जो थे वो बहादुर भी नहीं चादर भी नहीं सर पे चादर भी नहीं करबला के मकतल में सुबह से अंधेरा है करबला के मकतल में सुबह से अंधेरा है संजतन के सूरज को बादलों ने घेरा है संजतन के सूरज को बादलों ने घेरा है आजिमा में तन्हा है जालिमों के दरवे में आजिमा में पढ़नी है बेकसी के साए और नमाज पढ़नी है बेकसी के साए इनके हालों के मकतल में सुबह से अंधेरा है करबला के मकतल में सुबह से अंधेरा है पंजतन के सूरज को बादलों ने घेरा है पंजतन के सूरज को बादलों ने घेरा है नन्हे फूलों के लिए बूंद पानी भी नहीं नन्हे फूलों के लिए बूंद पानी भी नहीं
सीधा चले जाइए, सीधा आगे बढ़िए। करबला के मकतल में सुबह से अंधेरा আপনার কাছে না ওই আরেকজন নিয়ে আনিছে কে নিছে যে স্ট্যান্ডের কি উঠাইছে হ্যাঁ আপনি हाय करबला के मकतल में
Shall
लाइट जब डालिए एक तो लाइट चले और ये अंधेरे में ये बात करें क्या हुआ तो क्या
बस एक